In the previous talk, you would have discussed the various complications of acute pancreatitis. Now, one of the complications of acute pancreatitis or repeated attacks of acute pancreatitis is chronic pancreatitis. So, when do we call chronic pancreatitis chronic pancreatitis? So, we're going to talk about its etiology, the underlying pathology, the clinical features with which the patient presents, the various investigations we require to diagnose this very important condition, then the management of chronic pancreatitis, both medical and interventional, which includes radiologically interventional, endoscopically interventional, or surgically interventional, and then look at the prognosis of this difficult disease. Now, the important thing is that chronic pancreatitis is a progressive inflammatory disease which is characterized by irreversible destruction of pancreatic tissue. Now, the difference here is that in acute pancreatitis, the destruction of pancreatic parenchyma is reversible. When it becomes irreversible, there is fibrosis, there are various other changes which have taken place in the parenchyma, and there is loss of parenchyma of the pancreatic tissue because of the progressive inflammatory disease. Then it is known as chronic pancreatitis. Its incidence is about 2 to 10 cases per 100,000 and prevalence is about 13 cases per 100,000, and it is much higher in certain areas in, for example, southern India, where various nutritional factors are said to play their part. The male to female ratio is 4:1, so it is a predominantly disease of the males, and mean age of onset is 40 years. Once again, like in acute pancreatitis, the major etiological factor is high alcohol consumption, and it is responsible for more than 60% of the cases. And not only high alcohol consumption, but also genetic and various other metabolic factors, they also play a role. Then pancreatic duct obstruction due to stricture formation either after trauma. That trauma can be blunt trauma or other trauma to the body, or it can be a trauma of the endoscopic retrograde cholangiopancreaticography, the ERCP, or it can be a trauma because of secondary to surgery, like doing a sphincteroplasty or doing a transduodenal stone retrieval from the ample of water. That can result in subsequent stricture formation and hence obstruction to the pancreatic duct. Then acute pancreatitis, repeated attacks of acute pancreatitis or even a single attack of acute pancreatitis can cause stricture formation in the pancreatic duct. And then of course pancreatic malignancy can present as pancreatic duct obstruction leading to destruction of the parenchyma of the pancreas and resulting in chronic pancreatitis. Then various congenital abnormalities like pancreatic divisum or annular pancreas, they are associated with papillary stenosis and hence obstruction to the pancreatic duct, and it predisposes the patient to develop chronic pancreatitis. Then there can be hereditary pancreatitis, and we'll see various genetic permutation which can lead to hereditary pancreatitis. Then cystic fibrosis, infantile malnutrition, hyperlipidemia, hypercalcemia, and of course idiopathic, which is a very literate way of saying that we do not know. It is classified usually into 3 categories. It is chronic calcifying pancreatitis, which is mainly related to alcohol consumption. Then chronic obstructive pancreatitis, as the name implies, it is because of periductal fibrosis and ductal dilation. And then chronic inflammatory pancreatitis, which is a very rare entity. So main are 2, the calcifying, which is because of alcohol or because of ductal obstruction. Then there are distinct classifications, but we are going to talk about only 2 here, the TIGAR-O or the Manheim classification. In the TIGAR-O system, the major risk factors are categorized as T is for toxic, metabolic, for example alcohol, I is for idiopathic, in which you can put in various patients in which we have
not been able to identify any definite cause, but you have to rule out cystic fibrosis before labeling it as an idiopathic case. Then G is for genetic, and these kind of chronic pancreatitis is more commonly seen in younger age group, especially in the pediatric population. A is for autoimmune, R is for recurrent, and O is for obstructive, which may be secondary to choledocholitis or pancreatic head tumor. So this system of classification, the TIGAR-O system, is basically resting on the etiology of chronic pancreatitis. It is this system is based on the etiology. Then we can see the various causes of toxic metabolic, not only alcohol but tobacco smoking, hypercalcemia, hyperlipidemia, various medications and other toxins like scorpio stings. Then idiopathic can be idiopathic or tropical. Genetic, it can be autosomal dominant, where it is PRSSI mutation, or autosomal recessive with modifier genes, CFTR or SPINK-I mutations, or PRSS2, the anionic trypsinogen gene mutations. Then it can be autoimmune, it can have recurrent severe acute pancreatitis subsequent to the necrosis caused by the acute pancreatitis, resulting in a loss of pancreatic parenchyma, and then of course obstructive because of pancreatic divisum or other causes of ductal obstruction. In hereditary pancreatitis, normally when there is trypsinogen activated prematurely, जैसे हमने एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में बात की थी कि जो ट्रिप्सिनोजन की मैच्योरेशन है वो लाइसोसोमल उसकी एक्टिविटी के साथ होती है, तो अगर किसी वजह से वैसे एक्टिवेट हो जाए प्रीमेच्योरली तो इट इज़ इनहिबिटेड बाय SPINK-I. बट इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन दिस कैटायोनिक ट्रिप्सिनोजन जीन PRSSI हो जाए तो ये जो डिग्रेडेशन रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन को डिग्रेड नहीं होने देती. सिमिलरली अगर SPINK-I जो है वो मौजूद नहीं है तो वो जो ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो गई है प्रीमेच्योरली उसको इनहिबिट नहीं कर पा रही. तो PRSSI में क्या है कि जो ट्रिप्सिन बन रही है वो डिग्रेड नहीं हो पा रही, और SPINK-I में ये है कि जो ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो रही है प्रीमेच्योरली उसको इनहिबिट नहीं कर सकते. इसी तरह जो CFTR जीन में म्यूटेशन है वो इडियोपैथिक पैनक्रेटाइटिस करता है. So hereditary pancreatitis, which is occurring at early age, that can lead to pancreatic carcinoma, especially in patients who also have a habit of smoking tobacco. Then tropical pancreatitis is affecting younger age group. The patients have diabetes, they have stone formation in the pancreatic duct, and the highest incidence is seen in the southern Indian part and in some African and Central American areas where there is ingestion of the cassava. When there is intake of cassava, there is cyanogenic glycoside present in cassava, which is considered a risk factor, has been proven to be a risk factor for chronic pancreatitis. Then malnourishment and hydrocarbons released from kerosene and paraffin lamps. आप देख सकते हैं कि ये जिन जगहों की बात हो रही है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज है, वहाँ यूजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उन इलाकों में, तो वहाँ पे जब वो लैंप्स इस्तेमाल करते हैं जो कि पैराफिन से चलते हो या केरोसिन ऑयल से चलते हो, तो उससे जो हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं, they are also said to play an important part in development of tropical pancreatitis. Then autoimmune pancreatitis. There is diffuse enlargement with irregular narrowing of pancreatic duct, and IgG4 are elevated. It may occur alone or it may be with a part of a generalized autoimmune disease. And pancreas, usually in early disease, it appears to be normal and later enlarges and becomes hard and fibrous. The ducts are distorted and there may be stricture formation and ectasia. Now if you remember, जब हमने कार्सिनोमा पैनक्रियास की बात की थी और हमने कहा था कि हम पेशेंट के CA19-9 लेवल्स कराएंगे और वो अगर 190 यूनिट से ज़्यादा होगा तो हम मलिग्नेंसी समझेंगे, साथ IgG4 कराएंगे अगर CA19-9 रेज नहीं है, बायोप्सी क्लियर नहीं है, तो IgG4 अगर रेज्ड है तो हम समझते हैं कि वो ऑटोइम्यून पैनक्रेटाइटिस है और उन पेशेंट्स को स्टीरॉयड से डील करते हैं. देखें कि इसके अंदर भी जो ग्लैंड है वो हार्ड और फाइब्रोज हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मलिग्नेंसी में होता है.
तो जो इसकी फीचर्स हैं, इमेजिंग पे जो फीचर्स हैं वो भी ऐसे लगते हैं कि जैसे ये सस्पिशियस मैस है, मलिग्नेंट हो सकता है, मगर जो IgG4 लेवल्स एलिवेट होते हैं उससे हमें पता लगता है ये ऑटोइम्यून पैनक्रेटाइटिस है, और इन पेशेंट्स को हम स्टीरॉइड्स देके ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और अगर 3 से 4 महीने के बाद भी मैस वैसा ही रहता है तो दोबारा इनकी बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं कि मलिग्नेंसी तो नहीं है कहीं। Then clinical features, the most important clinical feature in chronic pancreatitis is pain. It is the chief complaint early in the disease. Initially अब तक और कोई चीज़ दूसरी नहीं होती, जैसे हम आगे चल के देखते हैं कि और क्या फीचर्स हो सकते हैं, मगर पेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। और पेन कैसी होती है, जैसे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में होती है, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, विच इज़ लाइक समबडी इज बोरिंग समथिंग इनसाइड। वो कहते हैं कि जी जैसे कोई सुआ घुसा रहा है, कोई बरमा जा रहा है अंदर पेट के, और जो पीछे कमर तक जाता है। इट यूजली इज बिकॉज ऑफ डक्टल हाइपरटेंशन, जब डक्ट में प्रेशर बढ़ता है, डक्ट डायलेट होती है, उसकी वजह से होती है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी एरिया में क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हुआ है, क्योंकि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि सिर्फ पेनक्रियास के एक स्पेसिफिक एरिया में क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है। इट में इन्वॉल्व ओनली हेड, इट में इन्वॉल्व ओनली द बॉडी और द टेल और द होल ऑफ द ग्लैंड। सो इफ इट इज ओनली इन्वॉल्विंग द हेड, तो जो पेन होगी वो एपिगैस्ट्रियम राइट अपर क्वाड्रेंट में होगी, लेफ्ट साइड ऑफ पैनक्रियास में ज़ाहिर है, लेफ्ट सबकोस्टल और बैक पेन में होगी। और यूजली ये जो पेन होती है डल होती है, और पेशेंट कहता है कि जी ऐसा लगता है अंदर से कोई खा रहा है, और बीच में रिपीटेड एक्यूट अटैक्स होते हैं। इसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, और फिर चूंकि खाना खाने से दर्द आती है, क्योंकि जब खाना हम खाते हैं और एक्सोक्राइन फंक्शन जो है एक्टिवेट होता है, और चूंकि डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और उसके बाद डक्ट की स्वेलिंग होती है, डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से ये पेन होता है। तो आदमी खाना खाने से डरता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ ईटिंग विच वुड ब्रिंग ऑन दैट वेरी वेरी सिवियर पेन, उसकी वजह से ये पेशेंट जो है इनको वेट लॉस होता है। सो समटाइम्स इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन chronic pancreatitis and pancreatic malignancy. Then there can be sleep disturbance due to this pain. फिर जब ये प्रोग्रेस करता है chronic pancreatitis, then there is loss of exocrine function. When there is loss of exocrine function, then there would be steatorrhea. पेशेंट को होता है फाउल ऑफेंसिव स्टूल्स पास करता है, जिनका कलर जो है ना आमतौर पर कहते हैं गाची के रंग के पॉटी आती है। गाची इज लाइक, आप में से जिन लोगों ने तख्ती लिखी है उनको पता होगा कि अपनी तख्ती के ऊपर जो कच्ची मिट्टी फेरते हैं उसको गाची कहते हैं। तो इट रिजेंबल्स दैट कलर, देन इट इज स्टिकी एंड इट इज वेरी फाउल स्मेलिंग। एंड देन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ endocrine function, these patients develop diabetes mellitus, which is very refractory to various treatment options. और ये sometimes जब ज़्यादा gland damage होता है और काफ़ी endocrine function को डिस्टर्ब किया होता है, तो ये जो डायबिटीज़ होती है इसको हम ब्रिटल डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे हमने उस दिन बात की जब टोटल पैनक्रेटेक्टमी कर दें तो पेशेंट्स को ब्रिटल डायबिटीज़ हो जाती है। Then there are multiple hospital admissions because of these reasons. The quality of life is severely compromised. जिनसे काम नहीं हो पाता, पेन इतना severe होता है, it is very difficult for them to stick to any job. They are dependent on the analgesics and there is weight loss, and they are generally very unhappy people. Now all complications of acute pancreatitis, जो complications आपने acute pancreatitis की पढ़ी है, जिनमें pseudocyst formation है, जिनमें pancreatic ascites है, जिसमें walled off necrosis है, जिसमें pancreatic abscess है, and so on and so forth, वो सब chronic pancreatitis में भी हो सकती हैं. So important thing is pain which is actually very severe, brought on by eating, and because of this this reason they are afraid of eating, leads to weight loss. उस पेन की वजह से एनाल्जेसिया डिपेंडेंस होता है, सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, स्टेटोरिया होता है, लॉस ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन होता है, और डायबिटीज मेलाइटस होता है। मगर मेन फोकस, मेन प्रॉब्लम, मेन सिम्टम इज पेन इन दीज पेशेंट्स. देन when you investigate, blood test में amylase lipase may be slightly elevated in initial stages, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, पेनक्रियाटिक पैरेन्काइमा की डैमेज होगी, तो फिर ऑफ कोर्स amylase lipase बनेंगे नहीं, तो वो रेस कैसे होंगे. Then low levels of serum trypsin are specific in advanced chronic pancreatitis. serum trypsin के लेवल्स कम हो जाते हैं, सीरम कैल्शियम, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कराए जाते हैं आइडेंटिफाई द कॉज करने के लिए, क्योंकि हमें पता है हाइपरकैल्सीमिया से भी होता है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस,
और हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया से भी होता है। देन यू कैन डू फीकल टेस्ट, उसमें फीकल फैट एनालिसिस करके देखते हैं। स्टेटोरिया अगर है, हमें पता है फैट अब्जॉर्ब नहीं हो रही बिकॉज ऑफ नो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू अब्जॉर्ब दैट फैट, देन फीकल काइमोट्रेप्सिन एंड ह्यूमन पेनक्रियाटिक इलास्टेज 1 ढूंढते हैं इसके अंदर। Then the mainstay of diagnosis of course is on imaging. जैसे acute pancreatitis में mainstay imaging पे था, इसी तरह chronic pancreatitis में भी जो mainstay diagnosis का है वो imaging पे है। और once again the imaging of choice is CT, computed tomography. It is the most appropriate initial imaging modality and it not only helps us in diagnosing but it also helps us in excluding other potential intra-abdominal pathologies. Then it cannot exclude a diagnosis of chronic pancreatitis, but it can exclusively diagnose early or mild difficult to diagnose early or mild chronic pancreatitis. याद रखें ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम दूसरी जो पोटेंशियल इंट्रा-एब्डोमिनल पैथोलॉजीज है उनको एक्सक्लूड करने के लिए इस्तेमाल करें, और फिर जो मॉडरेट टू सीवियर और ज़्यादा अरसे तक प्रोलॉन्ग हो चुका है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस उसको ढूंढने के लिए। अर्ली केसेस, माइल्ड केसेस में सीटी स्कैन भी इतना स्पेसिफिकली डायग्नोज नहीं कर सकता। देन ऑफ कोर्स इस सूरत हाल में एमआर और एमआरसीपी जो है दे आर much superior and they are indicated in patients on जो सीटी में आप स्पेसिफिक चीज़ें नहीं ढूंढ सके, हिस्ट्री बड़ी सजेस्टिव है, लग रहा है पेशेंट को क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है मगर सीटी पे ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है, उन पेशेंट्स के लिए एमआर और एमआरसीपी जो है वो एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। देन सीक्रेटिन स्टिमुलेटेड एमआरसीपी इज मोर एक्यूरेट देन अ स्टैंडर्ड एमआरसीपी बिकॉज इट कैन आइडेंटिफाई सटल डक्टल चेंजेस। इट शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर अ नेगेटिव एमआरसीपी। एमआरसीपी कराया, सीटी कराया, सीटी पे कोई खास चीज़ नहीं मिली, एमआरसीपी कराया, एमआरसीपी नेगेटिव है, तो ऐसे पेशेंट्स को जिनकी हिस्ट्री बड़ी सजेस्टिव है, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन है, उनका फिर सीक्रेटिन स्टिमुलेटेड एमआरसीपी करके देखते हैं। इट प्रोवाइड्स गुड असेसमेंट ऑफ एक्सोक्राइन फंक्शन एंड डक्टल कंप्लायंस। Then endoscopic ultrasound can also be used to diagnose parenchymal and ductal changes mainly during the early stage of chronic pancreatitis, and there are no known validated radiological severity scoring systems। जैसे हमने acute pancreatitis में कहा था कि बाल्थहाज़र severity scoring system है जिसमें CTSI है, जिसमें pancreatitis के लिए स्कोर अलहदा है और नेक्रोसिस के लिए स्कोर अलहदा है, और दोनों को ऐड करते हैं CTSI से निकालते हैं। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बट देयर इज अ मॉडिफाइड कैम्ब्रिज क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एमआरसीपी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसमें क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में जो मॉडिफाइड कैम्ब्रिज क्लासिफिकेशन है, severity when there is no abnormal, this LSB stands for lateral side branches, इसमें कोई abnormality नहीं है, ग्लैंड का साइज शेप नॉर्मल है, homogeneous parenchyma है, there is no chronic pancreatitis, you rule out chronic pancreatitis। इक्विवोकल कब है, जब आप नहीं कह सकते कि है ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो नॉर्मल है, लेकिन जो लैटरल साइड ब्रांचेस हैं डक्ट की वो लेस देन 3 एबनॉर्मल है, डायामीटर जो है वो 2 से 4 मिलीमीटर तक है, ग्लैंड एनलार्ज है ओवर 2 टाइम्स द नॉर्मल साइज, एंड द पैरेन्काइमा इज हेट्रोजीनस, या होमोजीनस थी या अब हेट्रोजीनस होना शुरू की। माइल्ड क्रॉनिक अब कहते हैं, इसमें भी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट नॉर्मल है, लेकिन देयर आर 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, एक तो 3 या 3 से ज़्यादा लैटरल साइड ब्रांचेस एबनॉर्मल हो गई हैं, मीन पैनक्रियाटिक डक्ट का डायमीटर 2 to 4 हो गया है, देयर इज स्लाइड ग्लैंड एनलार्जमेंट विद हेट्रोजेनस पैरेन्काइमा। अगर इनमें से इन 3 में से कोई सी 2 चीज़ें विद मोर देन 3 और मोर देन 3 एबनॉर्मल साइड ब्रांचेस, तब हम कहते हैं ये माइल्ड क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। मॉडरेट उस वक्त कहते हैं जब मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में चेंजेस आ गए हैं, lateral side branches में changes आ गए हैं, there are small cysts less than 1 centimeter in size, the main pancreatic duct is irregular, there is localized acute pancreatitis less than 1/3 of the gland, there is increased enhancement or echogenicity, and the gland contour is irregular। तो ये moderate chronic pancreatitis। severe उस वक्त कहते हैं कि इन moderate के जो changes हैं इनके साथ 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, अगर कैविटी जो बन गई है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज है, इंट्राडक्टल फिलिंग डिफेक्ट्स आ रहे हैं,
जो कैलकुलाई को शो करते हैं। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, सीवियर इरेगुलरिटी है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट की, या कॉन्टिगुअस ऑर्गन का इन्वेजन है, जो 7 ऑर्गन पड़े उनका इन्वेजन है। अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं तो ये क्रॉनिक है। दिस इज द मॉडिफाइड कैम्ब्रिज क्लासिफिकेशन। तो इट इज द ओनली थिंग जो इमेजिंग पे आपको बता सकता है कि कितना सीवियर chronic pancreatitis है। When you would go about learning about this disease, you would find out कि इसमें imaging modalities के अंदर अभी भी काफ़ी लोगों में इख्तिलाफ राय है, and it is not an easy disease to diagnose this, especially in mild and early cases. Then हॉलमार्क्स ऑफ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस जो हम एडवांस्ड इमेजिंग पे देख सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैल्सिफिकेशन। हमने कहा था 3 तरह की होती है, एक कैल्सिफाइंग होती है, एक डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, और एक जो लगातार इन्फ्लेमेशन चल रही होती है उसकी वजह से होती है। और कैल्सिफिकेशन आमतौर पर कब होती है? जो एल्कोहलिक होते हैं यूजली। सो इमेजिंग पे जो हमें नजर आ सकता है वो कैल्सिफिकेशन है, पेनक्रेटिक डक्ट की डायलेटेशन है, क्रॉनिक सूडोसिस्ट है। नॉर्मली तो एक्यूट फेज के साथ होती है ना, जब हम एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के बाद जो डेवलपमेंट होती है सूडोसिस्ट की, अगर सूडोसिस्ट क्रॉनिकली मौजूद रहती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो डक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। सो क्रॉनिक सूडोसिस, देन फोकल पेनक्रियाटिक एनलार्जमेंट एंड बिलियरी डक्ट डायलेटेशन। एब्डोमिनल रेडियोग्राफी पे, प्लेन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी पे कैल्सिफिकेशन नजर आ सकती है, और अगर कैल्सिफिकेशन नजर आ सकती है देन इट इज पैथोग्नोमिक ऑफ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन अबाउट 30% ऑफ द केसेस। सीटी स्कैन पे कैल्सिफिकेशंस बड़ी अच्छी तरह नजर आती हैं। यू ऑल्सो लुक फॉर मेन एरियाज ऑफ डैमेज, द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज, एंड एक्चुअली सीटी स्कैन आपको जो आपने सर्जिकल या एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन करनी है उसको प्लान करने में बहुत आपकी हेल्पफुल होता है। सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी 80% से ज़्यादा है इसकी। तो सीटी स्कैन पे क्या नजर आता है, ये देखें क्या नजर आ रहा है। ये सीटी स्कैन पे आप देख रहे हैं, ये कैल्सिफिकेशन है, ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड है और इस पैरेन्काइमा के अंदर ये डॉट्स कैल्सिफिकेशन के पड़े हैं, और यहाँ पे जहाँ पे ये इसका हेड है, ये आप इसका हेड देख रहे हैं, तो ये इस हेड के साथ ये एसोसिएशन है, ये सूडोसिस्ट है, ये गॉल ब्लैडर है जिसकी वॉल थोड़ी थिकन है, ये हेड के साथ ये एक फ्लूइड कलेक्शन पड़ी हुई है, और आप इस ये फ्लूइड कलेक्शन जो है ये एक सूडोसिस्ट है अबाउट 4 सेंटीमीटर इन साइज की। सो दिस पेशेंट हैज बोथ कैल्सिफिकेशन एंड अ सूडोसिस्ट। तो ये क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के पैथोग्नोमिक फीचर्स है। सिमिलरली इस पेशेंट के अंदर क्या है, इसके अंदर आप मल्टीपल ये वाइट डॉट दे सकते हैं, and then you can see perhaps there is dilatation or irregularity of the main pancreatic duct as well. So once again they are pathognomic of chronic pancreatitis. फिर हमने कहा जैसे कि अर्ली डिजीज़ में, माइल्ड डिजीज़ में ढूंढना मुश्किल है सीटी स्कैन पे, रेडियोग्राफ में भी सिर्फ 30% कैल्सिफिकेशन नजर आती है, तो फिर हम एमआरसीपी करके देखते हैं। एमआरसीपी हमें क्या बताता है, ये बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन ढूंढ सकता है, पेनक्रियाटिक डक्ट की स्टेट दे सकता है। जो हमने मॉडिफाइड कैम्ब्रिज क्लासिफिकेशन देखी थी उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट की इन्वॉल्वमेंट, कि वो नॉर्मल है, डायलेट हुई है, इरेगुलर है कि नहीं, और जो उसकी लैटरल साइड ब्रांचेस हैं उनका क्या हाल है। तो अगर हमें जो सिंपल एमआरसीपी पे इफ वी आर अनएबल टू फाइंड एनीथिंग देन वी डू अ secretin stimulated MRCP and it can demonstrate a pancreatic duct structure which was not otherwise visible on a standard MRCP. Normal CT, normal MRI, they do not exclude chronic pancreatitis. अगर आपका clinical suspicion बड़ा high है then you should go ahead and do a secretin stimulated MRC। तो MRCP पे हमें क्या नजर आ सकता है, अब जैसे आप देखें उस दिन भी हमने बात की थी डबल डक्ट साइन की। डबल डक्ट साइन का हमने उस दिन कहा था कि 2 मेजर रीजंस हैं डबल डक्ट साइन के, एक तो मलिग्नेंसी है जो पेरी एम्पलरी रीजन की है, और दूसरी पेनक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में जिसके अंदर यहाँ स्ट्रक्चर बना है उसमें डबल डक्ट साइन हो सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी परहैप्स कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, एंड देयर इज दिस वाइड देयर इज स्मॉल सिस्टिक लीजन जो कि ड्यूरनल वॉल के अंदर पड़ी हुई है। देन on secretin stimulated MRCP you can see the delayed gadolinium enhanced T1 weighted images which is showing the fibrosis of the pancreatic gland, then
ERCP once again. It provides the most accurate visualization and it has been regarded as the criterion standard for diagnosing. It helps to determine the type of surgical procedure that you would require to perform in patients with chronic pancreatitis. लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो इसकी लिमिटेशन है, ये पैनक्रियाटिक पैरेनकामा के बारे में हमें नहीं बता सकती. एंड हिस्टोलॉजिकल प्रूवन क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन नॉर्मल फाइंडिंग्स और पैनक्रियाटिक. आपने ERCP किया, ERCP पे बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग्स आई, डक्ट बिल्कुल ठीक आई, लेकिन चूंकि पैरेनकामा का इसमें पता नहीं लग सकता हमें, तो पैरेनकामा की जब आपने इमेज गाइडेड बायोप्सी की तो उसके ऊपर पता लगा कि इसमें तो फाइब्रोसिस मौजूद है. सो वंस अगेन हमें पता है ERCP क्या करती है. ERCP करके हम कैनुलेट करते हैं मेजर पेपिला को और उससे हम कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट को देखते हैं. और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें साइड ब्रांचेस की क्लबिंग नज़र आ रही है. ये जैसे हमने कैम्ब्रिज की क्लासिफिकेशन की बात की थी कि जो लैटरल साइड ब्रांचेस की अबनॉर्मैलिटी है, अगर वो 3 से कम है तो वो माइल्ड डिजीज़ है, अगर वो 3 से ज़्यादा और उसके साथ और चीज़ें हैं तो फिर वो मॉडरेट हो सकता है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्लबिंग नज़र आ रही है, अगरचे जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है उसकी कोई डायलेटेशन मौजूद नहीं है. सिमिलरली इस ERCP के अंदर now you can see that there is moderate chronic pancreatitis, there is dilatation of the main pancreatic duct, it is about 1.5 times normal. हम कहते हैं 2 से 4 मिलीमीटर तक है, जब उससे ज़्यादा होगी ये तकरीबन 6 मिलीमीटर है. एंड देन यू कैन सी कि जो साइड ब्रांचेस हैं, साइड ब्रांचेस इनकी क्लबिंग हुई हुई है. क्लबिंग का मतलब है कि जो उनका एक एंड है ना वो मोटा हो गया, क्लब हो गया एक साइड से. सो देयर इज क्लबिंग ऑफ द साइड ब्रांचेस, clubbing of the side branches. You can see clubbing of, this is the clubbing, जो एक एंड से मोटा हो गया, सूज गया डक्ट का साइड जो है. and there is dilatation of the main pancreatic duct. So similarly here you can see not only dilatation of the main pancreatic duct but also presence of stone. ये जो क्लासिफिकेशन है ना स्पेसिफिक, जिसे कहते हैं चेन ऑफ लेग्स. चेन ऑफ लेग का मतलब है बीच में स्ट्रक्चर है, फिर डायलेटेशन है, फिर स्ट्रक्चर है, फिर डायलेटेशन है. ये सीवियर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस को शो करता है. एंड ऑफ कोर्स जो इसकी आप साइड ब्रांचेस अगर आप देखें, साइड ब्रांचेस के अंदर भी मैसिव क्लबिंग हुई हुई है, मैसिव क्लबिंग हुई है, जिसका मतलब है कि अब डिजीज काफ़ी एडवांस हो गया है, काफ़ी फाइब्रोसिस हो चुकी है. सो देयर इज स्टोन फॉर्मेशन, देयर इज occlusion of the pancreatic duct, and this tells you that this patient has severe chronic pancreatitis and would be an candidate for intervention. Then once again this ERCP shows obstruction at the major papilla. You can see dilatation, you can see the side branches clubbing. Look at the side branches, look at the side branches, and also presence of these filling defects which are stones. Now there is blunting of the side branches, there is dilatation of the main pancreatic duct, there are filling defects, there is pancreatic lithiasis. It also shows, if you look here, it also shows stricture or obstruction of the common bile duct resulting in dilatation of the common bile duct. तो जो कुछ है वो यहाँ एम्पुलाप की वजह से जो स्टीनोसिस हुआ है इसने ये दोनों काम किए. सो इफ you have to go in and treat this patient for chronic pancreatitis, you have to do something for this common bile duct as well. Then endoscopic ultrasound may be the best test for imaging the pancreas. लेकिन जो सोनोग्राफिक क्राइटेरिया है अभी वो अंडर डेवलपमेंट है और उस पर भी कंसेंसस डेवलप हो रहा है. It is said that if 4 or more of these features are present, it is highly suggestive of chronic pancreatitis. ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की बात करें, अभी तक इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो प्रेजेंस ऑफ स्टोन है. अगर स्टोन मौजूद है पैनक्रियाटिक डक्ट में तो पेशेंट को क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है, पीरियड. देन और क्या क्या चीज़ें हैं, विजिबल साइड ब्रांचेस हैं, सिस्ट है, लैबुलैरिटी है, इरेगुलरिटी ऑफ द मेन डक्ट है, हाइपरएकोइक फोका एंड स्ट्रैंड्स हैं, ये फाइब्रोसिस को बता रहे हैं. देन डायलेटेशन ऑफ द मेन डक्ट एंड हाइपरएकोइक मार्जिन्स ऑफ द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये भी बताता है कि फाइब्रोसिस इतना हो गया कि कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो रही है. अभी स्टोन फॉर्मेशन नहीं हुई. कैल्सिफिकेशन होना और स्टोन फॉर्मेशन होना
दो ज़रा अलहदा चीज़ें। जब स्टोन डक्ट के अंदर डेफिनेट बन जाता है तो वो अलहदा बात है, और जो फाइब्रोसिस की वजह से जो हीलिंग की फर्दर स्टेज है कैल्सिफिकेशन, वो वॉल की और अलहदा से पैरेन्काइमा के अंदर होती है। देन ऑफ कोर्स हमने पहले बात की थी टाइगर ओ क्लासिफिकेशन की। जो एनहाइन सिस्टम है, इट एक्चुअली टेक्स इनटू कंसिडरेशन द स्टेज, द सेवेरिटी एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, इन सबको इंटीग्रेट करता है और यही वाहिद वो सिस्टम है जो हमें सेवेरिटी इंडेक्स देता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर अभी हम आगे चल के देखते हैं जिसमें स्कोर निकलता है 0 to 25 टेल्स अस अबाउट द सेवेरिटी। जितना स्कोर ज़्यादा है उतना सीवियर है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। सो दिस इज द एम एनहाइम पैनक्रेटिक इमेजिंग क्राइटेरिया, अल्ट्रासाउंड, CT, MR, MRCP वगैरह के लिए, और एंडोस्कोपिक आप देख सकते हैं कि उन इमेजिंग मोडालिटीज़ के लिए जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं अलहदा फीचर्स हैं, और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के लिए अलहदा है। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है कि डिपिक्टिंग होल ग्लैंड विदाउट एबनॉर्मल फीचर, और जो स्टडी की क्वालिटी है वो अच्छी है, 0 पॉइंट्स है, नॉर्मल है। इक्विवोकल है इफ देयर इज और माइल्ड चेंजेस। इक्विवोकल कब है? जब एक एबनॉर्मल फीचर है 1 पॉइंट है, और माइल्ड चेंजेस कब है? व्हेन देयर आर 2 or more एबनॉर्मल फीचर्स बट मेन पेनक्रेटिक डक्ट इज नॉर्मल, तो सिर्फ 2 पॉइंट देते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में वो कहते हैं 4 और फ्यूअर एबनॉर्मल फीचर्स। हमने अभी पीछे बात की थी कि क्या वो 4 फीचर्स है, जो डिफरेंट बात की थी। लोबुलैरिटी थी, लैटरल साइड ब्रांचेस का इशू था, उनका नजर आना था, पेनक्रेटिक डक्ट की रेगुलरिटी थी, उसकी डायलेटेशन थी, उसकी हाइपर जो उसकी इमेजिंग में हाइपर एक्विक जो साउंड्स आ रही थी वो थी। मॉडरेट हम कब कहते हैं? व्हेन देयर आर 2 or more एबनॉर्मल फीचर्स विद माइनर मेन पेनक्रेटिक एबनॉर्मेलिटीज, या तो एनलार्ज हो गई है बिटवीन 2 and 4, और देयर इज इंक्रीज्ड एक्कोजेनिसिटी। इसके 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्या है? 5 or more एबनॉर्मल फीचर्स, इधर 4 और फ्यू थे, इधर 5 और more है, एंड देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन मॉडरेट एंड मार्क्ड। ये 3 पॉइंट्स। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हमें यही बता सकता है, जबकि मार्क्ड चेंजेस जो CT, MRI अल्ट्रासाउंड पे आ सकते हैं, इट इज एज अबव, जो मॉडरेट में है 2 or more एबनॉर्मल फीचर्स, और उनके साथ मोर ऑफ द रिक्वायर्ड फीचर्स ऑफ मार्क्ड चेंजेस। ठीक है, अब जो कैम्ब्रिज क्लासिफिकेशन थी वो माइल्ड और मॉडरेट चेंजेस में CT और अल्ट्रासाउंड पे उतना बेहतर तरीके से नहीं करा सकती थी जितना एनहाइम है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमने जब पहले डायग्नोज कर दिया कि पेशेंट को क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, अब हम ये देख रहे हैं कि पेशेंट माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इस पे डिपेंड करती है। हमने सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट पे रखना है, हमने मेडिकल मैनेजमेंट में एड ऑन्स करने हैं, या हमने पेशेंट को अब इंटरवेंशन की तरफ लेके जाना है। ऑफ कोर्स इट वुड ऑल बी इन्फॉर्म्ड बाय द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज, कितना सीवियर डिजीज है। देन वी कैन डू पेनक्रेटिक फंक्शन टेस्ट। ये आम तौर पर कराने की ज़रूरत नहीं होते। दे आर मोर सेंसिटिव एंड कैन डिटेक्ट द क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस एट इट्स अर्लियर स्टेज, बट दे आर समवॉट इन्वेसिव, दे आर लेबर इंटेंसिव एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, और पाकिस्तान में उस तरह ईजीली अवेलेबल नहीं है। ड्यूनल एस्पिरेट करते हैं और उसके अंदर फिर आउटपुट देखते हैं कि कितना बायकार्ब है, प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज की लेवल्स कितनी है, और ये सिर्फ चंद जगह हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। दैन पेनक्रेटिक जूस को आइडेंटिफाई, उसको निकालते हैं, और उसके बाद उसके अंदर हम ERCP जब करते हैं तब पेनक्रेटिक जूस डक्ट के अंदर से एस्पिरेट करते हैं, और उस पेनक्रेटिक जूस को फिर जो उसका आउटपुट है उसके अंदर पेनक्रेटिक बाइकार्बोनेट और वही सारी चीज़ें जो हमने ड्यूनल एस्पिरेट से की थी वो पेनक्रेटिक जूस से भी करते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट जो नॉन इन्वेसिव है, दे हैव बीन डेवलप्ड। इसके अंदर ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस देते हैं, वो हाइड्रोलाइज होता है विद स्पेसिफिक पेनक्रेटिक एंजाइम एंड इट रिलीजेस अ मार्कर सब्सटेंस। फिर इंटेस्टाइन जो है उस मार्कर को एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो सीरम में या यूरिन में उस मार्कर के लेवल्स दिखे जाते हैं। इट इज़ दीज टेस्ट जो है ना ये आमतौर पर कराए जाते हैं मॉडरेट टू सीवियर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस को देखने के लिए। लेकिन अगर कोई रीनल डिजीज़ है, कोई इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, कोई लिवर डिजीज़ है, तो ये इन टेस्ट की एक्यूरेसी पे आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होनी है, फिर एब्जॉर्प्शन होनी है, एब्जॉर्प्शन के बाद उन्होंने जो रिलीज़ होना है वो यूरिन में जाना है या सीरम में जाना है। सो
अगर बाकी सारी चीज़ें ठीक है तब ये इनडायरेक्टली आपको बता सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट टेस्टिंग है या इनडायरेक्ट टेस्टिंग है पैनक्रियाटिक फंक्शन की, वो क्वाइट कम्बरसम और लेबर इंटेंसिव है। उसके मुकाबले में इमेजिंग हमें काफ़ी बेहतर, जब इमेजिंग को हम जोड़ते हैं साथ क्लिनिकल पिक्चर से, याद रखें हमेशा डायग्नोसिस की सबसे बड़ी बुनियाद जो ट्रायंगल है, डायग्नोसिस का जो ट्रायंगल है उसकी बेस हिस्ट्री पे बेस करती है। तो हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच इज हेल्पिंग अस इन डायग्नोसिस। देन मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स कैन बी मैनेज्ड मेडिकली। इनिशियली शुरू ही हमने मेडिकली करना है। गोल्स क्या है? गोल्स, सबसे पहला गोल ये है कि हम बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर दे जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को बढ़ा रहा है। अगर जेनेटिक फैक्टर्स हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं, तो जो हमारे टॉक्सिक हम इस्तेमाल करें, जो मेटाबॉलिक रीजंस हैं उनको हम विड्रॉ कर लें, अल्कोहल को विड्रॉ करें, स्मोकिंग को विड्रॉ करें। देन इट इनेबल्स द पैनक्रियास टू हील इटसेल्फ। Then we have to determine the cause of abdominal pain and alleviate it and detect कि कितनी पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी है और कैसे हम नॉर्मल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एंड देन आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन डेफिशिएंसी एंड देन मैनेज इट अकॉर्डिंगली। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने क्या करना है? एडिक्शन को ट्रीट करना है, अल्कोहल रोकनी है, उसकी टबाको स्मोकिंग को रोकनी है। इट मे इन्वॉल्व डिपेंडेंसी काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट। देन वी नीड टू एलिविएट एब्डोमिनल पेन। सबसे पहले जो ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करने की आइडेंटिफाई करें कि पैनक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेन हो रही है, डूडनम की, तो हम उसको कैसे इंटरवेंशन करनी है, स्टेंट करना है, डायलेट करना है, उसके बाद ये बेहतर होगी तो वो करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो एनाल्जेसिया है, जो स्टेप वाइज जो WHO की जो पेन रिलीफ लैडर है उसके हिसाब से करते हैं। सिंपलेस्ट एनाल्जेसिया से शुरू करते हैं और उसके बाद ऐड ऑन करके लेके जाते हैं और टॉप पे हमारा नारकोटिक एनाल्जेसिया है। लेकिन हम शुरू सिंपल से पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन से, फिर एनासिड से करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम कम से कम पेन रिलीफ डिपेंडेंट अपने पेशेंट को रखें। Sometimes you have to take your patient, refer your patient to pain management specialist. And sometimes when there is intractable pain, और हम पहले से भी इसकी बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो इस पेशेंट का पेन है, तो इन पेशेंट को CT गाइडेड, इमेज गाइडेड सीलियक एक्सेस ब्लॉक भी लगाना पड़ सकता है। जैसे हमने पहले पैनक्रियाटिक मैलिग्नेंसी में भी बात की थी, जो इरेसेक्टेबल ट्यूबर्स होते हैं जिसमें सीवियर पेन होती है, उनमें सीलियक एक्सेस ब्लॉक लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। देन अदर फीचर्स जो हम दूसरे काम कर सकते हैं, एक तो डाइट जाहिर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि फ़ैट को कम से कम कर दें डाइट में, ताकि पैनक्रियास पे कम से कम पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े बढ़ा दें। देन यू कैन सप्लीमेंट पैनक्रियाटिक एंजाइम, ओरली सप्लीमेंटेशन की जा सकती है मील के साथ। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है और विटामिन B12 है उसको फिर आपको पैरेंटली देने की ज़रूरत पड़ सकती है। देन यू कैन गिव माइक्रोन्यूट्रिएंट थेरेपी, मेथियोनोन, विटामिन C एंड E, सेलेनियम वगैरह दी जा सकती है। स्टीरॉइड्स का रोल सिर्फ ऑटोइम्यून पैनक्रियाटाइटिस में है एंड दैट इज ऑल्सो फॉर रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। देन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स इन पेशेंट्स को देते हैं जिनके अंदर सीवियर फैट मैल एब्जॉर्प्शन है, जो स्टेटोरिया के साथ प्रेजेंट करें, क्योंकि उनको उस तरह के लाइपेज की ज़रूरत नहीं है। एंड देन रिड्यूसिंग द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जब आप रिड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन तो जो एसिड स्टिमुलेशन जाती है ड्यूडेनम में और उसकी वजह से जो पैनक्रियास की स्टिमुलेशन जाती है वो भी कम हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स इफ देयर इज एंडोक्राइन मैल फंक्शन, पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसको भी हमने मेडिकली ट्रीट करना है। देन इंटरवेंशन करनी, हमने इंटरवेंशन कब करनी है? हमें पता है कि जब मॉडरेट टू सीवियर जा रहा है, इंट्रैक्टेबल पेन आ रही है, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल हो सकती है, एंडोस्कोपिक हो सकती है या सर्जिकल हो सकती है। मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? एक, to overcome obstruction of the pancreatic duct, then overcome obstruction of the bile duct or the duodenum, or dealing with complications like pseudocyst, like abscess formation, fistula formation, pancreatic ascites, or even variceal hemorrhage. So most of the times जब हम obstructive pancreatic duct को decompress कर देते हैं तो पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाती है।
कैसे कैसे कर सकते हैं? एंडोस्कोपिकली हम पेनक्रियाटिक स्फिंक्ट्रोटमी कर सकते हैं। ये उन पेशेंट्स में बेनिफिशियल है जिनका पेपिलरी स्टेनोसिस है या हाई स्फिंक्टर प्रेशर है, जो कंजेंटल, जो खास तौर पे एनॉमलस जंक्शंस होते हैं जिन पेशेंट्स के, उनके अंदर स्फिंक्ट्रोटमी कर दें तो जो पेनक्रियाटिक डक्टल प्रेशर है वो रिलीव हो जाता है, पेन रिलीफ हो सकती है। जिन पेशेंट्स के अंदर डोमिनेंट पेनक्रियाटिक डक्ट का स्ट्रक्चर है और अपस्ट्रीम डायलेटेशन है, उनमें आप स्फिंक्ट्रोटमी करके स्टेंट डाल सकते हैं, मगर स्टेंट ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं रहता है, 4 से 6 हफ्ते के बाद ये ब्लॉक हो जाता है। अगर पेनक्रियाटिक डक्ट स्टोन्स हैं तो ERCP के जरिए उन स्टोन्स को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इवन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इस्तेमाल की जा सकती है। ERCP का जो एंडोस्कोप है उसके एंड पे ट्रांसड्यूसर लगाते हैं, वो जाके स्टोन के कांटेक्ट में वो लिथोट्रिप्सी करता है, शॉक वेव देता है, उससे वो स्टोन टूट जाते हैं, फिर आप स्वीप करके निकालते हैं। कब करते हैं? ये उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं, मॉडरेट टू मार्क्ड चेंजेस हैं पेनक्रियाटिक डक्टल में, और ऑब्स्ट्रक्टिंग डक्टल स्टोन्स हैं जो 2.5 मिलीमीटर या उससे बड़े हो गए। इंटरवेंशन की चॉइस करते कैसे करते हैं? किन पेशेंट्स में आपको सबसे पहले एंडोस्कोपी करनी, जिनके अंदर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है। जिनके अंदर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है इसका मतलब है मेजर जो पेपिला है, जो मेन पेपिला है उसके साथ प्रॉब्लम है, तो वो आप कैसे इजीली वो एंडोस्कोपी से, जो आप साइड व्यूइंग ड्यूडेनोस्कोप से आप उसको पहुंच सकते हैं, वहां तक पहुंच के स्फिंक्ट्रोटमी कर सकते हैं, स्टोन निकाल सकते हैं, स्टेंट प्लेस कर सकते हैं। तो लेकिन ये डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए जितना प्रॉक्सिमल, जितना पेनक्रियाटिक पैरेन्काइमा के अंदर, नेक में, बॉडी में, टेल में जो मसाइल है, जो इवन जो डिस्टल हेड में मसाइल है, उनको डील करना डिफिकल्ट है एंडोस्कोपिकली, ठीक है। देन इट कैन बी कंबाइंड, जैसे हमने भी बात की, ESWL हो सकती है अगर मोर देन 4 मिलीमीटर साइज का स्टोन है, और डक्टल स्टंटिंग हो सकती है आफ्टर डीलिंग विद द स्ट्रक्चर। अनकॉम्प्लिकेटेड पेनफुल कैल्सिफाइड के अंदर सिर्फ ESWL की जा सकती है अगर ये अवेलेबल है और एक्सपर्टीज मौजूद है। याद रखें, मौजूद भी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी, और उसको इस्तेमाल करने वाला भी, जिसको जो ट्रेन हो उसमें प्रॉपरली, उसको करना चाहिए। बेस्ट कैंडिडेट्स कौन है इनिशियल फर्स्ट लाइन से? वो जिनकी ऑब्स्ट्रक्टिव कैल्सिफिकेशन है, जिसका साइज 4 मिलीमीटर से ज़्यादा है। ऑफ कोर्स अगर ये कामयाब नहीं होगी, फेलियर होगा, देन सब्सिक्वेंट यू गो इनटू द सर्जिकल प्रॉब्लम। सर्जरी का रोल क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करना और मैस लीजन्स को निकालना, ठीक है। वो पेशेंट्स जिनके हेड ऑफ पेनक्रियास में मैस है, उनका वैसे ही जैसे हम मैलिग्नेंसी के लिए करते हैं पेनक्रियाटिकोडुडेनेक्टमी, पाइलोरस प्रिजर्विंग प्रॉक्सिमल पेनक्रियाटिकोडुडेनेमी, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड विपल या बेजर्स ऑपरेशन करते हैं। बेजर के अंदर हम ड्यूडेनम को प्रिजर्व करके पेनक्रियाटिक हेड को रिसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये मैलिग्नेंसी के लिए नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये बिनाइन डिजीज के लिए किया जा रहा है। जब डक्ट मार्केटली डायलेट होती है तो हम एक लॉन्गिट्यूडनल पेनक्रियाटिकोजेजुनोस्टमी कर देते हैं, इसको फ्रेज प्रोसीजर कहते हैं, ताकि जो पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशंस है वो आराम से ड्रेन हो सके इन द इंटेस्टाइन। इन पेशेंट्स की जिनकी ये सर्जरी होती है, देखिए इसमें भी 50% पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ है। जिन पेशेंट का डिजीज सिर्फ दे आर लकी और सिर्फ टेल तक है, उनके डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी करते हैं, उनके लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन वो पेशेंट्स हैं जो इतने बड़े प्रोसीजर के बाद भी उनका पेन रिलीफ नहीं होता, उन पेशेंट्स के अंदर आपको टोटल पेनक्रियाटेक्टमी करके जो आइलेट सेल्स की ऑटो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। लेकिन यूजली अभी तक इतना बेनिफिट इसका नहीं हुआ। इवन पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट की अभी तक कोशिश की गई है, वो भी अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं है। सो सर्जरी की इंडिकेशंस क्या है? इंट्रैक्टेबल पेन, CBD ऑब्स्ट्रक्शन, पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट, पेनक्रियाटिक एसाइटिस, ड्यूडेनल कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जैसे आर्टीरियल सूडो, खास तौर पे जो स्प्लेनिक आर्टरी का सूडो एनेरिज्म बनता है, या वास्कुलर थ्रोम्बोसिस जो स्प्लेनिक वेन का थ्रोम्बोसिस बन जाता है, विद मेसेंटेरिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, एंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। ये हमने किस पे बात की थी? ये जो जेनेटिक कॉजेज होते हैं क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के, उनके अंदर एडिनोकार्सिनोमा के, ये यंगर एज ग्रुप में होते हैं, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, दैट आल्सो कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंसी। उन पेशेंट्स में मैलिग्नेंसी होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो ये वो एल्गोरिदम है
क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो पेनफुल क्रॉनिक पेनकिटाइटिस का मरीज है, हम कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट क्या करें? स्मोकिंग रोक रहे हैं, अल्कोहल बंद करें, नॉन नार्कोटिक पेन रिलीफ दे रहे हैं पेशेंट को, साइको सोशल इश्यूज को एड्रेस करें, उसकी जॉब का, उसके काम करने का, देन पेनक्रियाटिक एंजाइम से जो उसका एक्सोक्राइन फंक्शन है उसको एनहेंस करें, और प्री गैबलिन भी पेन रिलीफ के लिए दे रहे हैं। अगर ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो गई है, फेमिलियल पेनकिटाइटिस है, इन पेशेंट्स की टोटल पेनकिटेक्टमी करनी पड़ेगी विद आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है उसके बाद आपको पता लगा है कि IgG4 है, ऑटो इम्यून पेनकिटाइटिस है, इन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पे रखते हैं। देन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की देखा, इन्वेस्टिगेट किया, इमेजिंग किया, पता लगा लार्ज डक्ट डिजीज है, लार्ज डक्ट डिजीज विद नो बैस, शॉर्ट कोर्स ऑफ एंडोस्कोपिक थेरेपी करके देखी, स्फिंक्टोटमी की, स्टेंट डाला, कामयाब हो गई, वेल एंड गुड। नहीं हुआ, फेल हो गई, दीज आर द कैंडिडेट्स फॉर पियोस्टो और फ्रेस प्रोसीजर। हम आगे चल के देखते हैं ये क्या होते हैं। अगर लार्ज डक्ट डिजीज है विद इन्फ्लेमेटरी मैस इन द हेड, या स्मॉल डक्ट डिजीज है विद नो मैस, इन पेशेंट्स के अंदर या फ्रे और बेजस किया जाता है। और ये सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स, फ्रे किया है, बेजर किया है, पोस्टोस किया है, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट की, ये सारी फेल हो गई है, कामयाब नहीं हुई। हम ट्रीट क्या करें? पेनफुल क्रॉनिक पेनकिटाइटिस। हम ये सारा कुछ किस चीज के लिए करें? उस क्रॉनिक पेन के लिए करें। तो अगर ये सब फेल हो गया, इट ऑल एंड्स विद डूइंग अ टोटल पेनकिटेक्टमी with islet cell transplantation, and there would be other major problems, especially the brittle diabetes to deal with. So पियोस्टो क्या होता है? पियोस्टो उस वक्त करते हैं जब कोई स्टोन या प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ये प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, उसकी वजह से ये डक्ट सारी डायलेट हो गई है, लैटरल साइड ब्रांचेस भी फूल सी गई हैं। तो हमने क्या किया? हमने इसको पूरी डक्ट को लॉन्गिट्यूडनली खोल दिया, पूरे को खोल दिया, और यहाँ से ये जजनम जा रहा था, जजनम को डिवाइड किया, इस लूप को, ये वाला जो लूप है इसको ऊपर लेके आए यहाँ, इस लूप को जो डिवाइड किया था इस लूप को ऊपर लेके आए, इसको हमने खोल दिया, ये सारा ल्यूमन है, इस ल्यूमन को ऐसे खोल दिया हमने, और इसको जो पेनक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड है उसके साथ सूचर कर दिया। इसको कहते हैं पियोस्टोस प्रोसीजर, और जो हमारा GI का पाथवे है उसका रूआवाई कर दिया। सो दिस इज अ रूआवाई पेनक्रियाटिको जजनोस्टमी। ये पेनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर हमने जजनम को खोल के सारे को लगा दिया, ये पियोस्टो कहलाता है। इसमें किसी किस्म की रिसेक्शन हमने नहीं की, हमने पेनक्रियास का कोई सेगमेंट इसमें नहीं निकाला। उसके मुकाबले में जो फ्रेस प्रोसीजर है, जब हम फ्रेस प्रोसीजर करते हैं, ये तब करते हैं जब हेड के अंदर बड़ा सा मैस पड़ा होता है और साथ ऑब्स्ट्रक्शन होती है। सो वी टेक आउट दी हेड, जो जहाँ पे मैस है उसको एक्सरसाइज करते हैं, उसको एक्सरसाइज करने के बाद बिल्कुल उसी तरह रूआवाई जजनम का पीस लेते हैं, और उस जजनम के पीस को उसमें सिर्फ हमने पिछले पेशेंट में आप देखें हमने सिर्फ बॉडी और टेल के साथ किया था, और इसमें आप देखें तो हेड और अनसिनेट प्रोसेस के साथ भी कर रहे हैं। हेड भी इन्वॉल्व है, अनसिनेट प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, और ये जो हमारा अनास्मोसिस है इसने इन दोनों चीज़ों के साथ भी जोड़ा हुआ है। ये भी पेनक्रियाटिको जजनोस्टमी रूआवाई, ठीक है। ये देखें, ये पाथवे फूड का है, ये पाथवे पेनक्रियाटिक एंजाइम का है, ताकि ये वापस जाके स्टमक के अंदर प्रॉब्लम ना करे। सो दिस इज हाउ वी स्पेचुलेट दी जजनल एंड, ठीक है, बोथ इन पियोस्टोस एंड फ्रे। जो हम लूप निकालते हैं, नीचे से डिवाइड करते हैं जजनम का, उसको इस तरह खोल के स्पेचुलेट कर देते हैं, और उसकी एजेस को फिर एजेस के साथ, पेनक्रियाटिक डक्ट की एजेस के साथ, डायलेटेड और टिश्यू के साथ इसको स्टिच कर देते हैं, ठीक है। देन देयर इज अ प्रोसीजर विच इज नोन एज अ बेजर प्रोसीजर। बेजर प्रोसीजर में हम ड्यूडेनम को नहीं निकालते, हम ड्यूडेनम को वहीं रहने देते हैं, और जो पेनक्रियास का कुछ सेगमेंट उसके साथ है उसको वहाँ छोड़ के बीच में से हेड को एक्सरसाइज कर देते हैं, और फिर दोबारा पाथवे बनाते हैं बिटवीन दी पेनक्रियाटिक डक्ट एंड दी जजनम। सो बेजर्स में क्या किया आप देख सकते हैं। टू बिगिन विद देयर इज अ मैस हेयर एंड देयर इज डायलेटेशन ऑफ द डक्ट।
सो व्हाट हैव वी डन हेयर, हमने जो ड्यूडेनम के साथ बिल्कुल पैनक्रियाज का हिस्सा था, ये बीनाइन डिजीज़ है, उसको वहाँ छोड़ दिया, इस डक्ट को यहाँ पे हमने बंद कर दिया। ये बाकी बॉडी और टेल बची है, जैसे विपल के बाद बची होती है, और हमने इसके साथ जजनम को ला के लगा दिया। ठीक है, इसको ला के जजनम के साथ लगा दिया, एंड देयर इज अ रूम बाय jejunojejunectomy as well. Sometimes when there is dilatation of the duct as well, तो हम बेजर के साथ, जो बेजर करने के साथ हम उसकी डक्ट के साथ भी एनास्टमोस कर देते हैं, जैसे हमने फ्रे में या प्यूस्टो में किया था। ये मॉडिफाइड बेजर है। ठीक है, इट इज़ नोन एज बेजर विद प्यूस्टोज मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसमें भी जो प्यूस्टो था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने हेड को निकाल के सारे जो पैनक्रियाटिक रेमनेंट था उसके ऊपर जेजनम को लगा दिया था। इसमें हमने क्या किया है, हेड को बीच में से निकाला है, जो बॉडी और टेल है उसके साथ एनास्मोस करते हैं अगर डक्ट इतनी डायलेट नहीं है। अगर डक्ट भी डायलेटेड है तो हम यहाँ पे बिल्कुल जैसे हमने प्यूस्टो में किया था उसके साथ एनास्मोस कर देते हैं, इसको इससे कवर कर देते हैं, एंड देन वी डू अ jejunojejunostomy to re-establish the continuity of the food stream। ठीक है, रून वाई हमने कहा था क्यों करते हैं, रून वाई हम इसलिए करते हैं कि हम फूड स्ट्रीम को जो एंजाइमेटिक स्ट्रीम है उससे अलहदा करते हैं, ताकि वो एंजाइम्स और वो सारा कुछ जो है सिक्रीशंस जो है वो स्टमक में जाके प्रॉब्लम ना पैदा करें, जो लूप में करने में इम्कान रहता है। ठीक है, देन प्रोग्नोसिस आपने देखा है कितना डिफ़िकल्ट है। इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज करने के बाद भी सिर्फ 50% पेशेंट्स हैं जिनका पेन रिलीफ होता है, और फिर उन पेशेंट्स को जिनका नहीं होता उनकी टोटल पेनकेटेक्टमी भी करनी पड़ सकती है विद आइलेट सेल ट्रांसप्लांट। सो यूजुअली there is a gradual decline in their professional, social and personal lives. The pain may abate after a surgical or percutaneous intervention, but it usually returns over a period of time. Inflammation जिन patients में जारी रहती है, जो abstain नहीं करते, alcohol, tobacco smoking जारी रखते हैं, वो burn out हो जाता है, पूरा pancreas जो है वो खाया जाता है, inflammation उसको ख़त्म कर जाती है। उन patient में जो पेन भी ख़त्म हो जाती है पेशेंट की, क्योंकि पैरेन्काइमा नहीं रहता, कोई एक्सोक्राइन फंक्शन नहीं रहता, डक्टल डायलेटेशन नहीं होती, लेकिन उन पेशेंट्स में सीवियर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी होती है, एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, स्पेशली इन दोज पेशेंट्स जिनमें 20 साल से ज़्यादा ये क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस रहा हो। सो आई अंडरस्टैंड दिस इज not very common condition, it is a difficult condition to treat. If there are any questions, please let me know. I'll be very happy to answer them. Thank you.